dear students. Today we are going to start with our new chapter, that is chapter 2, time. So in your previous classes also you must have studied how to read and write time. So in this class again we are going to first revise the concept of time. So as you can see, this is a clock. Now a clock has how many numbers? There are 12 numbers. Okay, there are two hands in a clock. As you can see, one is long hand and other one is short hand. So there are basically two hands in a clock. Short hand is known as hour hand. Okay, it shows the hour. Now as you can see, it is at 7, so the hour is 7 hour. Okay, we will read it as 7 o'clock. Okay, but the hand is known as minute hand. You can see that this minute hand is moving when, and this is a second hand. तो ये सेकेंड्स का हैंड होता है, ये मिनट का हैंड होता है, और ये जो है जो 7 के सामने है वो हमारा आर हैंड होता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मिनट हैंड है वो मूव करता है. लेट मी शो यू हाउ इट मूव्स. So you can see that it moves. Okay, but the hour hand remain at the number itself. When this minute hand will complete one round, then now the minute hand has completed one round, then this hour hand will shift to the next number. Similarly again this minute hand will move. Okay, and when it completes one round, when it's going to complete one round, जब वो 12 पे पहुंच जाता है, then again it's going to move on the next number. Now as it takes 1 hour to move from one number to other number, so it will take 12 hours to complete one राउंड. ओके, पूरा 1 राउंड लगाने के लिए इसको कितने आवर्स की ज़रूरत होगी? 12 आवर्स की ज़रूरत होगी. सपोज़ कि अगर ये 9 पे है और फिर से इसको 9 पे पहुंचना है, तो जैसे कि अभी 9 AM हो रहा है और फिर इसको 9 PM पे पहुंचना है, तो ये पूरे 12 आवर्स घूम के दोबारा 9 पे आ पाएगा. ओके, दोबारा 9 पे आने के लिए इसको पूरा एक कंप्लीट राउंड लगाना पड़ेगा, और उस कंप्लीट राउंड में कितने आवर्स होंगे? 12 आवर्स होंगे. तो 1 डे में ऐसे ही उसको, अगर 9 AM टाइम है, सुबह के 9 बजे का टाइम है, तो सुबह के 9 बजे के लिए उसे दूसरे दिन सुबह 9 बजे का इंतज़ार करना होगा. तो उसमें 12 + 12 कितने आवर्स लगेंगे? 24 आवर्स लगेंगे. दैट्स वाई देयर आर 24 आवर्स इन 1 डे एंड इट टेक्स 2 राउंड टू कंप्लीट 24 आवर्स. Now the long hand is called the minute hand. As you can see, this long hand is the minute hand. It completes 1 round in 1 hour. You can see if I move this minute hand, it will take 1 hour to complete 1 round. And that's why 60 minutes have how many hours? 1 hours. तो 1 hour में 60 minutes होते हैं, या फिर पूरे 60 minutes का 1 hour होता है. Okay, now this hand, this hand that is continuously moving, this hand is known as second hand. ओके, सेकेंड मतलब सेकेंड्स का. क्या क्या होता है? आवर्स होते हैं, मिनट्स होते हैं, और सेकेंड्स में टाइम होता है. 60 seconds have 1 minute. See over here, second hand moves very faster than the minute hand. This is second hand. It completes 1 round in 1 minute. तो second hand 1 round 1 minute में लगाता है. That's why there are 60 seconds in 1 minute. So student, as you can see, this hand is long hand and it is known as minute hand. Okay, and this hand, short hand, red one, it is hour hand, and this one that continuously moves, that is known as second hand. Now you have to make this clock in your fair copy, and also you have to write this in your fair copy. Now let us see how to read and write time. In your previous classes you have studied how to read and write the time. Now you can see the short hand is at 3 and the long hand, minute hand, is at 12. So the time will be read as 3 o'clock, or it is 3. So we can read it as 3 o'clock,
or we can write it as 3 colon 0 0. This is hours. This shows hours. How many hours are there? 3 hours. And this shows minutes. Okay, कॉलन के बाद जो भी है वो मिनट्स के लिए है, जैसे कि कोई भी मिनट हो सकते हैं. 3 आवर्स और 0 मिनट. 12 पे 0 मिनट्स होते हैं. 3 o'clock. और वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म. 2 वेज में लिखना आपने पहले भी सीखा है. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर मिनट हैंड जब भी 12 पे होगा और आर एंड किसी भी नंबर पे होगा तो हमें ओ क्लॉक में टाइम को लिखना है. टाइम इज इन आवर्स. नाउ लेट अस सी टाइम इन हाफ hours. So in half hours the minute hand will always lie at 6. तो short hand किसी भी दो numbers के बीच में रहे. If the short hand will lie between these two numbers, ये हमेशा बीच में होगा, कहीं आप 4 पे नहीं बना सकते. ये शॉर्ट हैंड बीच में होगा, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट नंबर को ही यहाँ पे लेना है. ओके, तो टाइम होगा 4:30 या फिर 4:30. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आवर्स कितने हैं, 4 hours, एंड देयर आर हाउ मैनी मिनट्स, 30 minutes. So these are the two ways to write the time when the time is in half. Over here time in quarter past hours. So in quarter past hours you can see the short hand or the hour hand lies slightly away from 7. ओके, 7 अगर 7 o'clock हो गया है तो 7 o'clock के बाद मिनट हैंड 3 पे होगा. एग्जैक्टली 3 पे होता है हमेशा मिनट हैंड, बट शॉर्ट हैंड स्लाइटली 7 से थोड़ा ऊपर होगा. ओके, सो वी विल राइट द टाइम एज quarter past 7. यू कैन सी इन अ क्लॉक दिस इज अ क्वार्टर पार्ट. तो ये एक क्वार्टर पार्ट को कंप्लीट कर रहा है, दैट्स वाई इट विल बी रिटन एज क्वार्टर पास्ट. ओके, एंड हाफ पास्ट मतलब वो पूरा हाफ क्लॉक को कंप्लीट कर रहा है, दैट्स वाई इट विल बी रिटन एज हाफ पास्ट. नाउ क्वार्टर पास्ट 7, और इन अदर वे वी कैन राइट इट एज 7 colon 15. Okay, so this is the hour and these are the minutes. 7 hours 15 minutes. So it will be read as quarter past 7. So now we will see the time in quarter 2. Okay, you can see that the minute hand will always lie at 9. Okay, and the hour hand will lie slightly near to द नेक्स्ट नंबर. जैसे कि अगर 4 बज रहा है तो स्लाइटली दूसरे नंबर के बीच में या उसके पास वो लाई करेगा, मतलब ऑलमोस्ट वो 5 पे होगा. सो हियर वी आर गोइंग टू रीड द टाइम एज क्वार्टर 2. जिस भी नंबर के नियर होगा, जैसे ये 5 के नियर है, क्वार्टर 2 5, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे ये 4 बज चुका है, 4 o'clock हो चुका है. अब 5 बजने में सिर्फ 15 मिनट्स रिमेनिंग है. सो क्वार्टर 2 5 मतलब 5 बजने में सिर्फ एक क्वार्टर पोर्शन ही रिमेनिंग है, और वी कैन राइट इट एज 4 colon 45. जब भी 9 पे होता है मिनट हैंड तो हमेशा मिनट्स कितने होते हैं, 45. So student, now let us see time in 5 minutes interval. The minute hand takes 5 minutes to move from one number to the next number. तो अगर मिनट हैंड अभी 5 पे है तो इसे अगर 6 पे मूव करना है तो ये कितने मिनट्स लेगा. देखो 1 2 3 4 5, तो कितने मिनट्स लगे, 5. यू कैन सी दीज 2 बिगर डॉट्स, इन दोनों के बीच में कितने मिनट्स हैं, 1 2 3 4 5 मिनट्स हैं. टोटल यहाँ पे 5 मिनट्स हैं. आप काउंट करेंगे, अगर बीच बीच का काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, टोटल 5 गैप है. तो अगर मिनट एंड 1 नंबर से दूसरे नंबर पे शिफ्ट होता है तो टोटल उसे 5 मिनट्स लगते हैं. ओके, नाउ व्हाट विल बी द टाइम. नाउ यू कैन सी that the hour hand is between 8 and 9 and the minute hand is between which number is at 6. So the time will be 8:30. Okay, अभी टाइम क्या हुआ है, 8:30 हुआ है. अगर ये 5 मिनट्स और इंक्रीज हो जाएगा, अगर ये 7 पे आ जाएगा, so the time will be 8:35. Now why the time will be 8:35? We can read the table of 5. It will help us. Okay, 5 ones are
5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, मतलब अगर 1 पे है मिनट एंड तो टाइम होगा 8 5, अगर यहाँ 1 पे होता तो टाइम होता 8 5, जो भी मिनट आर एंड जिस भी नंबर पे होता है हम उसको लेते हैं, और मिनट एंड के लिए हम मिनट्स को लिखने के लिए 5 का टेबल पढ़ते हैं। 2 पे होता तो 10 मिनट्स लिखते, 3 पे होता तो हम यहाँ पे 15 मिनट्स लिखते एंड सो ऑन। 6 पे था तो हमने 30 मिनट्स लिखा, क्योंकि 5 इंटू 6 इज हाउ मच, 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 6 ज़ा 30। अब 7 पे था तो हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 7, 5 7 ज़ा 35। अब इसके बाद आप देखिए कि 7 के बाद अगर ये नेक्स्ट पॉइंट पे आता है तो 35 के बाद क्या आता है, 36, तो यहाँ पे टाइम हो जाता 8:36। तो आप मिनट्स को भी देख सकते हैं, ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट एंड 5 मिनट हो जाता है। ओके, तो हर दो नंबर के बीच में 5 मिनट्स का डिस्टेंस रहता है। सो वी कैन राइट दिस टाइम इन अदर वे एज 35 मिनट्स पास्ट 8। ओके, तो हम 8:35 को 35 मिनट पास्ट 8 भी लिख सकते हैं। अगर 36 लिख रहे हैं तो 36 मिनट पास्ट 8 मतलब कितने, 8:35 मिनट्स, या फिर 8:36 मिनट्स। तो यहाँ पे अभी ये 11 पे, दैट इज़ 5 इंटू 11 55 मिनट्स हो रहे हैं, तो 9 बजने में सिर्फ 5 मिनट्स की देरी है, 9 नहीं बजे हैं, 9 के बिल्कुल पास में है शॉर्ट एंड। ओके, सो वी कैन राइट दिस टाइम एज 8:55, 8 बज चुके हैं, सिर्फ 5 मिनट और बचे हैं, और वी कैन राइट दिस एज 5 मिनट्स टू 9, मतलब 9 बजने में सिर्फ 5 मिनट्स की देरी है। और अगर आपको टाइम इस वे में शो करना है सो इट विल बी 8 hours 55 minutes।